हर्ष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। संस्थान के निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे दीक्षांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। I request Honorable President of AIIMS Patna to declare the first convocation of All India Institute of Medical Sciences Patna open. By the virtue of the authority vested in me as the President of AIIMS Patna, I declare the first convocation of the All India Institute of Medical Sciences Patna open. धन्यवाद सर। अब मैं एम्स पटना के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रता सिन्हा को स्वागत भाषण ज्ञापित करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हाथ जोड़कर स्वागत करना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का और सम्मान की बात है। मैडम, you represent the heart and soul of our great nation. We at AIIMS Patna are deeply obliged and happy and proud that you have kindly consented to grace this august and momentous function on this day of 19th October 2023. I and all other distinguished IBGB members, faculty, staff and students feel gratified to be part of this historic moment. बिहार राज्य के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, बिहार राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर भारती प्रवीण परमार जी का स्वागत करने में मैं आनंदित महसूस करता हूं। I also extend a warm welcome to our distinguished guests, IBGB members, members of parliament, legislative assemblies, distinguished academicians, doctors, faculty, staff and students who as part of the AIIMS Patna family are instrumental in getting us to where we are today. AIIMS Patna was one of the 6 new AIIMS to be started after AIIMS Delhi to bring about a transformative change in our healthcare system, be it patient care, teaching or research, by empowering all regions of this great nation and removing regional disparities. The vision of Sri Atal Bihari Vajpayee ji has fructified under the dynamic leadership of our respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. This is the first convocation of AIIMS Patna. I am honored to be also standing in the shoes of our previous presidents of the institute body. Initially, they were all ministers of health and family welfare, and then Sri J.P. Nadda ji was succeeded by Professor N.K. Arora. The current institution is also a tribute to their vision. I also welcome you on their behalf. I heartily congratulate the students of AIIMS Patna who are receiving their degrees and medals, as well as their proud parents, and wish them the very best for their future endeavors. Thank you. Dhanyavad. स्वागत भाषण के लिए सादर धन्यवाद सर। मेरा निवेदन होगा
संस्थान के निदेशक महोदय से कि वे संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। Very good evening, all of you. Namaskar. Esteemed Srimati Draupadi Murmu ji, the Honorable President of India, respected Sri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, Honorable Governor of Bihar, respected Sri Nitish Kumar ji, the Honorable Chief Minister of Bihar, respected Dr. Bharati Pravin Pawar ji, the Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, respected JS Madam Dr. Ankita Mishra Bundela, respected members of the institute body, executive directors of various AIIMS, all esteemed guests and invitees, members of the faculty, graduating students, parents, and members of print and electronic media. At the outset, I congratulate all the doctors who will be receiving their degrees today. AIIMS Patna started in the year 2012 by an act of parliament along with other 5 AIIMS at Bhubaneswar, Raipur, Bhopal, Jodhpur and Rishikesh under the PMSSY scheme of Ministry of Health and Family Welfare. Currently, under the visionary leadership of our present Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and dynamic supervision and guidance of Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandviya ji, 17 more new AIIMS have been established, and currently we have 23 AIIMS in the country. Dr. G.K. Singh was the first director of this institute, and during his tenure, the initial facilities were established. Dr. P.K. Singh, the second director of the institute, took the institute further forward, and an excellent work was done under his guidance during the COVID-19 pandemic, for which AIIMS Patna received highest appreciation at national and international levels. Dr. N.K. Arora, the immediate past president of the institute, spearheaded the vaccine research and was instrumental in facilitating research and overall growth of the institute. Now at AIIMS Patna, the hospital services for patients have increased tremendously, and currently the OPD turnover of the patient has increased more than 5,000 per day, and our IPD beds occupancy rate is more than 75%. As part of the mission recruitment and through the rolling advertisements for faculty and non-faculty recruitments, we have filled more than 70% of posts of doctors, nurses, hospital staff, and institute staff. Recruitment of the remaining 30% posts will be completed by end of this year. The operation theatres have been made functional from 13 to 24, and the waiting time for surgery has been reduced considerably. AIIMS Patna has done extremely well in implementation of Ayushman Bharat Digital Mission, ABDM scheme of the Government of India. I am happy to inform you all that AIIMS Patna, as of today, is the second best AIIMS in the country to have the highest number of ABDM linked registration of ABDM scheme of the Government of India, and among the best for hospitals in the country to have the ABDM linked healthcare facilities, and is number 1 in patient treatment availing under PMJ and RBSK scheme of Central Health Ministry in the state of Bihar. At AIIMS Patna, we have established Amrit Pharmacy with 18 counters and Jan Aushadhi Kendra with 5 counters. With considerable improvement in hospital management, the AIIMS Patna has been ranked as one of the top 90 hospitals in the world's best hospital India 23 ranking done by the Newsweek, an independent US-based agency. In our mission of enhancement of academic programs, we have started DM course
in the Department of Nephrology, Neonatology, Cardiology, and Clinical and Interventional Physiology, and 6 years integrated MCH course in trauma surgery, gastrosurgery, and cardiothoracic surgery, and also the PhD program. Under our research initiatives, a research division has been created, and we have extramural research grants of more than 20 crores of this year in last 8 months, which is highest among all the new AIIMS. With rapid progress and overall improvement, AIIMS Patna for the first time has secured 27th rank in NIRF ranking among more than 700 medical colleges in the country. 4th best position among all the 20 new AIIMS conducted by the Free Press Journal, and 10th best medical university in the country by India Today Best Medical University rankings. Our immediate future plans are to start kidney transplant and liver transplant facilities, for which MOU has been signed with PGI Chandigarh and the Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. Before I end my report, I would like to convey my heartfelt gratitude to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for her gracious presence in today's convocation ceremony and for her unfathomable blessings for AIIMS Patna. Madam, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ एम्स पाटना तरफରୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। जय हिंद। धन्यवाद सर। निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत एवं अभिनंदन करें। सर, कृपया बिहार राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। सर, आपसे निवेदन करूंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करें। सर, कृपया राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, माननीय डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार जी का स्वागत करें।
धन्यवाद महोदय। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से की है जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ऐसे ही मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे छात्रों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर अनुग्रहित करें। अन्य विशिष्ट अतिथियों से सादर निवेदन है कि वे राष्ट्रपति महोदया को ज्वाइन करें। The gold medal for the best graduate for MBBS 2017 batch goes to Dr. Insha. Shweta Singh wins the gold medal for best graduate MBBS 2018 batch. Gold medal for BSc Nursing 2016 batch goes to Miss Monica. Kumari Akriti wins the gold medal for BSc Nursing 2019 batch. पोस्ट ग्रेजुएट में 75% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर रिया रॉय, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट से। डॉक्टर स्वाति, पैथोलॉजी विभाग से। डॉक्टर चरण तेजा केवी, अस्थि रोग विभाग से। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं विशिष्ट अतिथियों को अनेक अनेक धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर भारती प्रवीण परिवार जी से कि वे मंच पर आकर हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद शिवचेदी पासवान जी, माननीय गोपाल हरिदास जी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, एम्स के अध्यक्ष प्रेसिडेंट सुब्रत सिन्हा जी, यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गोपाल कृष्ण पाल जी, हमारी माननीय अंकिता मिश्रा जी, एम्स के अलग अलग हमारे एम्स से आए हुए हमारे डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण, यहाँ के छात्र, उनसे घर से आए हुए सभी परिवारगण और पत्रकार बंधु, नमस्कार साथियों। आज नवरात्रि के शुभ दिनों में एम्स पटना का दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए बड़े सम्मान की बात है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हम सभी के बीच उपस्थित है।
उनकी गरिमामय उपस्थिति में ऐतिहासिक पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना की पावन भूमि को हम नमन करते हैं और करतल ध्वनि के साथ आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज का दिन विशेष है। मेरे सामने ऐसे होनहार युवा बैठे हैं और हम मानते हैं, जानते हैं कि युवा का मतलब एक नई सोच, युवा का मतलब एक नया नजरिया, और जो समाज के हर हिस्से को और सफलता की ओर ले जाते हैं, ऐसे युवा साथियों को मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को बहुत बधाई। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, मैं फिर वही इतिहास में थोड़ा जाना चाहती हूँ कि हमारा एम्स पटना, जो कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए जो 6 एम्स थे, उनमें से एक है। और यह हमारे गर्व की बात है आज कि आज एम्स पटना का पहला दीक्षांत समारोह है, जिस कार्यक्रम में स्वयं देश की राष्ट्रपति जी शामिल हुई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गौरवान्वित पल है, क्षण है। PMSSY के अंतर्गत स्थापित एम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का उद्देश्य यह है कि आम आदमी के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना और देश में गुणवत्तापूर्वक एक अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिलना, और साथ ही में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा रिसर्च को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान में एम्स का नाम एक गुणवत्ता, एक प्रतिबद्धता और एक समृद्ध अनुभव का पर्याय बन गया है। और यदि हम कहें कि आज एम्स एक ब्रांड बन चुका है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स की स्थापना की है। जब हम पहले सिर्फ एक एम्स को जानते थे, दिल्ली एम्स, आज हमारे पूरे भारत भर में 23 एम्स की संख्या बढ़ाई गई है। कुछ फंक्शनल हुए हैं और कुछ अभी बनने की तादाद में है। तो मुझे लगता है कि ये एम्स की गति देना और एक मिशन मोड पे काम करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। एम्स, जैसे कि दिस इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड एज 90 बेडेड हॉस्पिटल इन 2013 में, एंड इज नाउ हैविंग बेड कैपेसिटी, बेड स्ट्रेंथ इज 960. We are proud that AIIMS Patna work relentlessly to achieve the mandate of providing excellence in patient care. AIIMS Patna is an excellence in academics, research, patient care and outreach to the community. आज एम्स के इस दीक्षांत समारोह में उन विद्यार्थियों को, जो ग्रेजुएट्स, उन सभी उनके परिवारों को, फैकल्टी मेंबर्स को और मैं पूरे एकेडमिक कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिनके कारण ये आज का दिन का ये कार्यक्रम संभव हो पाया। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है और साथियों, युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। तो आज ये आपकी तरक्की भी हमारे देश के विकास में जोड़ी जा रही है। इस बात को लेके हमें ये विश्वास है कि आप सभी ग्रेजुएट्स हमारे देश के स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आपको यह जान के खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की संख्या, जो कि 387 थी, आज वो बढ़ा के 706, लगभग डबल हो गई है। उसके साथ ही यूजी सीट्स देखा जाए तो 51,000 से बढ़ के आज 1 लाख से ज्यादा सीटें बढ़ाई गई है। उसी के साथ पीजी सीट भी बढ़ाई गई है। मेरा कहना यही है कि आज मेडिकल सेक्टर को इतना महत्व है, और जैसा कि कोरोना के संकट काल में देखा कि ये हमारी फील्ड को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे थे, मुझे लगता है इसी दिशा में आज की ये वृद्धि जो एजुकेशन सेक्टर मेडिकल में हो रही है, ये बहुत ही अपने आप में
एक सफलता है। हमारी देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आप लगान से काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर के लिए आप सभी का जुड़ना भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बस इतना ही कहूँगी कि एज अ डॉक्टर मुझे भी मेरा कॉलेज का दिन याद आ गया और इस दिन को हम कभी नहीं भुला पाते हैं। तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही यादगार दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है और आज भारत ने एक अच्छी मेडिकल सेक्टर की शुरुआत की है। आप जानते होंगे कि टेलीमेडिसिन का भी आज 14 करोड़ से ज़्यादा टेलीकंसल्टेशन का उदाहरण हमारे देश ने प्रस्तुत किया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं बस साथियों आपको यही कहूँगी कि इस यादगार दिवस पे पुनः एक बार सभी छात्रों को, उनके अभिभावकों को मैं बहुत बधाई देती हूँ और उनके जीवन में सफलता की कामना करती हूँ। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। और मैं एम्स के चिकित्सकों को, अधिकारियों को अपने योगदान की भी सराहना करती हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी हमारे देश और मानवता की कई और वर्षों तक सेवा करने में जुटेंगे। और यही कहते हुए मैं बस एक दो लाइनें कहूँगी कि शायद आप ज़रूर उस पर सोच विचार करेंगे और इन लाइनों के बाद सुनने के बाद शायद आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, देश की सेवा में ज़रूर जुटेंगे। वो लाइनें हैं कि अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, क्योंकि यही देश है हमारा जो आपकी इस विकास यात्रा में जोड़ने के लिए साथियों आपकी राह में खड़ा है। फिर एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। अब मैं निवेदन करूंगी बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि वो सभा को संबोधित करें। आज एम्स पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हुई हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी अभी बोली हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी। हम देख लिए आपको, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। और फुलवारी के माननीय विधायक श्री गोपाल रविदास जी, पटना एम्स के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत सिन्हा जी, सासाराम रोहतास के माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हैं पटना एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल जी। यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गलत से बोल दिए, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब। कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके यहाँ पर बैठे हुए देखिए पूरा।
और यहाँ उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी। यहाँ उपस्थित हैं सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित चिकित्सकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस जो एम्स पटना के मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, और यहाँ उपस्थित हैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों। इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं और पाटलिपुत्र की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में पहली बार आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह में पधारी हैं। अब साथ ही इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर एम्स पटना से ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण होता है। आपके कठिन परिश्रम एवं अध्ययन के बाद यह विशेष पल हासिल हुआ है और मुझे आशा है कि आप अपने मेडिकल की शिक्षा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को पता ही है भी, और हमको तो जो याद है इसलिए कह देना चाहते हैं, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे, तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था, और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी कि याद करिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया कि यहाँ पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना, सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे, और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहाँ रहते हैं और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है, लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहाँ के लोग हैं सबको पता है, आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहाँ हम बन गए मुख्यमंत्री, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहाँ एम्स का काम चले, तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहाँ पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहाँ। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए यही हम आकर के देखे थे, और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा, और 2 जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो सेलेक्ट किया हुआ हम लोगों का, तो हमारा बतवा तब भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया, हम दूसरा चीज बोल देगा उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं,
ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके और कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए, तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहाँ जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे। अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहाँ, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आए, बहुत साल के बाद मीटिंग में आए। तो ये सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना। अब भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं। आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा। यहाँ तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा। अब उसको अधिकार है चर्चा करने का। लेकिन जब हम घूमते थे तो ये लोग नहीं आता था मेरे साथ। तो इस जगह को सेलेक्ट किए, अब कितना बढ़िया बना है। और उसके लिए हम लोगों ने जगह चुना, और भी उसमें हम जो भी 72 एकड़ था और फिर 100 एकड़ की बात किए थे, तो हम लोगों ने एडिशनल उसके लिए और भी निजी जमीन कर दिया, तो कुल 102 एकड़ कर दिया। और इसके लिए प्रारंभ करने के लिए, जल्दी शुरू करने के लिए, उस समय जो केंद्र में सरकार थी और उसके स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद। तो हम तो भाई अपोजिशन में एमपी रहते थे, वो लोग तो वहीं पर रूलिंग पार्टी उन लोगों का हो गया था। हम लोग तो श्रद्धेय अटल जी के साथ थे ही, लेकिन ये लोग अब वो सब सुनते रहता था मेरा, तो वो लोग तो सब जानता था। जब वो वन के मंत्री यहाँ पर आए, हमने कहा कि अरे भाई तेजी से काम काहे नहीं कर रहे हैं। इसको जब शुरू कर दिए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तय हुआ, इसको आप लोग शुरू काहे नहीं कर रहे हैं, तेजी काहे कर रहे हैं। बहुत बार हम उनको प्रेरित किए, और तब जाकर के वो लोग किया कि देखिए हम लोग सब चीज करवा रहे हैं, आपको अगर दिक्कत है तो हम ही लोग पैसा लगा करके शुरू कर देंगे। तो अंत में वो भी करना शुरू किया, और करना शुरू किया तो लगभग सभी तरह से हो गया। और 25 सितंबर 2012 को पटना एम्स का उद्घाटन हुआ। तो उस उद्घाटन में भी तो हम भी आए थे, और उसी समय ये सब शुरुआत हो गया। और इसको 13 में एम्स चालू हो गया। तो उसी समय से चालू है, तब से हम कितना बार आते हैं। अब इसीलिए अब आप समझ लीजिए कि अभी 960 बेड उपलब्ध है। यहाँ पर सभी प्रकार की सर्जरी और अन्य जटिल रोगों का इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और आप जान लीजिए कि यहाँ इतना बढ़िया काम हुआ है कि जब ये कोरोना का दौर 20 में शुरू हुआ, तो पूरे बिहार में सबसे बढ़िया इलाज कोरोना का जो पीड़ित थे यही हो रहा था। सबसे ज्यादा यही लोग काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे। तो हम लोगों के तरफ से तो मालूम है ना भाई, यहाँ कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, और सब लोग आकर के करते थे। इसलिए जो भी है, जितने चिकित्सक हैं, ऐसे सभी कर्मियों को मैं बहुत ही आपका अभिनंदन करता हूं। और आप लोग इतना बढ़िया काम करते रहें कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका और विस्तार हो, तभी हाल में लोग कहे हमको कि और थोड़ा सा दे दीजिए, तो हमने तय कर दिया है और अधिकारियों को कह दिया है। कितना है जी? 300 कितना है? 330 करोड़ रुपया उसमें हम लोगों का लग रहा है। और आप लोगों ने और भी चाहा था करीब करीब 25, तो हमने कर दिया 25 या 27 है। तो उसके लिए हम लोगों ने बगल का तय कर लिया है, वो भी आप लोगों को हम लोग अलॉट करने वाले हैं। और आपको उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी का यहाँ पर इलाज हो सके। तब मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आज ही आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। और कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहाँ कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया।
वहां पर हमारा जो पुरनका सत्य यहीं पर बैठे हुए हैं ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे। तो हम उसी समय उनको कहे कह रहे याद न है भाई, यहाँ पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो जितना कम्मा वहां किए उसको छोड़ करके तो यहाँ पर भी सब कम्मा छोड़ दीजिएगा, इसलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी काम के लिए जरूरत होगा हम सब तरह से, तो कुल मिलाकर के जो भी बोले 25 एकड़ नहीं 27 एकड़ जमीन हम लोगों ने तय कर दिया है, और उसके लिए जो कुछ भी होगा सब तरह से इनको हम लोग पूरे तौर पर सब कुछ करेंगे। और एक चीज जो हम लोग यहाँ पर देखते थे ना कि सब जगह एम्स में जो चिकित्सा के लिए आते हैं तो उनके परिवार के लोग भी रहते हैं, बेचारा बाहर खड़ा रहता है। तो उसी समय हमको लगा कि नहीं साहब, यहाँ पर पटना एम्स से लेकर एक जो कुछ भी है बगल में एक हम लोग बनवा दें यहाँ पर। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे तौर पर एक यहाँ पर हम लोग पूरा करवा रहे हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, और लोगों को जो कुछ भी इलाज के लिए अपने लोगों को आएगा उसके रहने के लिए, और हमने कह दिया है कि बहुत ही ज़्यादा कोई जो कुछ भी है कोई 248 बेड का धर्मशाला निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है, वो भी हम लोग जल्दी करा देंगे। तो ये सब काम आपके हित में करेंगे, जो कुछ भी संभव है हम लोग सब तो देख ही रहे हैं। अब आने जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं हो तो एक एक चीज न बनवाए हैं। अभी सब लोगों को लाया गया है, राष्ट्रपति आए, सब आए, कौन रास्ता से आए आप सोच लीजिए। अब कब बनवाए, 12 एकड़ एलिवेटेड हम बनवाए, यहाँ पर तो सामने बैठा हुआ है अधिकारी हमारा। तो आप सोच लीजिए कि कितना उसके लिए तेजी से हम लोगों ने काम किया, और चारों तरफ करवा रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में, और चारों तरफ और काम हम लोग करवा रहे हैं जान करके, ताकि किसी को भी यहाँ आने में, चाहे वो बाहर का हो, उत्तर बिहार का हो या दक्षिण कहीं का भी इलाके का हो, उन सब लोगों को यहाँ कोई आना चाहे उसको आने जाने में सहूलियत हो, उसके लिए भी हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब काम तो हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों को जब भी मदद करे, जैसे एक बार मुझको कह दिए, वैसे ही अगर आपको लगे कि पूरे इलाके में जो है, जो यहाँ पर का एम्स के लिए और किसी तरह की सहूलियत की जरूरत है, राज्य सरकार पूरा का पूरा आपका सहयोग करेगी, आपको मदद करेगी। हम इतना आपको कह देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। और आज के इस अवसर पर आपने मुझको भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पर उपस्थिति से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बड़ी लोगों को खुशी हुई है। आप जब यहाँ पर हुआ है तब पहली बार ना आ रहे हैं, तो इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित हुई हैं, तो बड़ी सब लोगों को खुशी है कि आप आ गई हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर उपस्थिति हो रही है, तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्रियां प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हैं, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। खूब आगे बढ़िए और खूब तरक्की करिए, यही है। और यहाँ पर जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, और इस पर मौका मिला इसके लिए मुझे खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक आभार सर। मेरा अनुग्रह है बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे अपने आशीर्वचनों से छात्रों और इस सभा को लाभान्वित करें। एम्स पटना के
प्रथम दीक्षांत समारोह में हम सबका सौभाग्य है परम आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं उपस्थित हैं। बिहार का राज्यपाल और प्रथम नागरिक इस नाते मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका यहां आना हम सबके लिए शुभकारी ही होगा और लाभदायक भी है। जैसे कि आपने अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं देने की घोषणा की है। कैसे रोड बनेगा, कैसे क्या बनेगा, और इस एम्स के लिए और भी जगह देने का उन्होंने हम सबको वचन दिया है। आज के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण पवार जी, भारती प्रवीण पवार जी, एम्स पटना के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रत सिन्हा जी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल जी, यहाँ सभागार में बैठे बिहार प्रशासन के सभी अधिकारी, यहाँ बैठे सभी सांसद, सभी विधायक, जिनके लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी मेडिकोस के युवा बहनों और भाइयों, उनके अभिभावक और यहाँ सभी अन्य उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए शुभ दिन है और लक्षणीय भी दिन है। वैसे आपके हाथ में डिग्री आ गई, आप स्नातक बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बन सकते हैं, और आप इसको लेकर समाज के भीतर जाने वाले हैं। समाज में जाकर क्या काम करना है, या आपको अनेक लोगों ने बताया होगा। आज के इस कार्यक्रम का नाम दीक्षांत समारोह है, यानी कि यह दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है, शिक्षा का अंत नहीं है। आज यह दीक्षांत का एक अवसर है। आपके हाथ में एक डिग्री आ गई है और आप दीक्षित बन गए हैं, यानी कि आप बाहर जाकर लोगों की सेवा करने के लिए जो आपके मन में तत्परता है, उम्मीद है, उसके लिए आप आज तैयार हैं। और मुझे लगता है इसी विषय को लेकर आप सभी समाज में जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा, यह शिक्षा का अंत नहीं है। आप डॉक्टर बनकर बाहर जाएंगे, सेवाएं दे देंगे मानवता के लिए, परंतु उसमें भी आप शिक्षा प्रदान करते रहेंगे, शिक्षा लेते रहेंगे। और शिक्षा ही सतत निरंतर होती है, इसका कोई अंत भी नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे नए विषय आते रहते हैं, उन सभी विषयों को आप आत्मसात करते रहेंगे और इन विषयों के लेकर, इन शिक्षा के द्वारा समाज की सेवा कैसी करनी है, इसके लिए आप तत्पर रहेंगे। मैंने कहने की बात नहीं है। आप सबको एक बार मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जिन जिन लोगों के हाथ में डिग्री आ जाएगी, वो सभी लोग, सभी विद्यार्थी डिग्रियां लेकर बाहर जाएंगे। लेकिन सभी आप पर निर्भर होता है कि जब कोई भी आपको पूछेगा कि डिग्री कहां से है, तो आपको वो डिग्री का कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप एम्स के विद्यार्थी हैं,
या आपके यहाँ ऊपर लिखना होगा। यह आपको डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं। आपका बर्ताव कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, इस पर निर्भर करेगा और वह बताएगा कि आप एम्स के विद्यार्थी थे। एम्स की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक विरासत है, और एम्स से जो भी विद्यार्थी बाहर स्नातक होके या पोस्ट ग्रेजुएट होके बाहर आता है, उसकी एक विशेषता होती है। समाज के प्रति जो समर्पण भाव होता है, उसके लिए काम करने की जो आवश्यकता है, वो उसके भीतर होती ही है। और आप सभी भाग्यवान हैं कि आप एम्स के विद्यार्थी हैं, आपके पास एम्स की डिग्री है। मुझे लगता है इसी को आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। और यह कैसे हो सकता है? समाज के प्रति अपनी भावना, समाज के प्रति समर्पण, समाज के प्रति वहां सेवा का भाव, यह लेकर जब आप जाएंगे तभी यह संभव है, तभी यह प्रतीत हो जाएगा। मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं जो मैंने सुना था, पढ़ा था, संभवतः यहां भी मैंने कहा होगा। एक कार्टून प्रसिद्ध हुआ था आर.के. लक्ष्मण का। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कार्टून आते थे और उस कार्टून में उनके एक कॉमन मैन होता था। और वो कॉमन मैन एक अभी अभी एमबीबीएस की डिग्री लेकर बाहर आए हुए इस विद्यार्थी को पूछता है, वो कॉमन मैन, कि भाई बताओ मुझे, जब आपने एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया था, उस समय आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आफ्टर माय एमबीबीएस, आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई विल बी गोइंग टू द विलेजेस। तो कॉमन मैन पूछता है, भाई बताओ आपका वो विलेज कहां है, आप अभी भी जाओगे? तो एमबीबीएस स्नातक बताता है, वो ग्रेजुएट होकर बाहर आकर बताता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आज भी उसी वचन पर अड़ा हुआ हूं कि मैं विलेजेस में जाऊंगा, लेकिन मेरा विलेज अमेरिका में है। दिस इज वॉट ही वॉज टेलिंग टू द कंट्री। ये पास्ट है, नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी सब बातें बदल चुकी हैं। आप सब ऐसा सोचते हैं, ऐसा मैं मानता नहीं। आपके मन में यहाँ के समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करने की बहुत ही अच्छी तत्परता है, उसमें उम्मीद है। वो एक जमाना था, आर.के. लक्ष्मण के कार्टून का समय का था, वैसा था भी, परंतु आज समाज के लिए समर्पण भावना से, सेवा की भावना से काम करने के लिए आप तत्पर हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर हम जब सोचेंगे, तभी हमारी शिक्षा, हम स्नातक बने एमबीबीएस के, हम पोस्ट ग्रेजुएट बने मेडिकल फैकल्टी के, तो मुझे लगता है उसकी सार्थकता यही होगी कि हम समाज के प्रति, वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो समाज का एक व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, उसकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूंगा। मुझे लगता है यही ओथ जो होती है वो यही है, हमारी हिपोक्रेटिक ओथ होती है तो यही होती है ना। मुझे लगता है समाज के प्रति हमको इस भावना से देखना पड़ेगा, इस दिशा में जाना पड़ेगा। आप सभी सर्वज्ञ है, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस विषय को लेकर हम यहाँ से उठकर जाएंगे जब बाद में, तब इसी विषय को लेकर जाएंगे कि मुझे बाहर जाकर किसी ने पूछना नहीं पड़ेगा। मेरे आचरण के प्रति देखने के बाद उनको पता चलेगा दिस पर्सन इज फ्रॉम एम्स। एम्स की अपनी ये जो विरासत है उसको हमको बढ़ाए रखने की आवश्यकता है, उसको बढ़तर करने की आवश्यकता है, और सेवा भाव एम्स का ब्रीद वाक्य है। इसलिए इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। हम सब परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वचन सुनने के लिए तत्पर हैं, और इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगी इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वे दीक्षांत सभा का संबोधन कर नव स्नातक छात्रों का
मार्गदर्शन करें। एम्स पटना के इस दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, एम्स पटना की प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुब्रता सिन्हा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर गोपाल कृष्ण पाल जी, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों और देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले सभी स्वर्ण पदक विजेताओं और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का दिन आप सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। आज आप सबको वर्ष की परिश्रम का फल मिला है। मैं आपके अभिभावकों और माता पिता को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज एम्स पटना का पहला दीक्षांत समारोह है। आज का दिन इस संस्थान और यहाँ के हर विद्यार्थियों के लिए गौरव का भी दिन है। डॉक्टर की उपाधि मिलने का क्षण हर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवमय क्षण है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में से जो बताया गया है 55% से अधिक लड़कियां हैं और मंच पर गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से भी अधिक लड़कियां हैं। मैं सभी बेटियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज से आप सब देश और देशवासियों के स्वास्थ्य और विकास में अपनी उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सक्षम हो गए हैं। माता पिता और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि माता पिता जीवन देते हैं और डॉक्टर लोगों को नया जीवन देते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होती है और लोग डॉक्टर पर विश्वास करके अपना इलाज करवाते हैं। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य है कि आप इस नोबेल प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें और सेवा भाव से कार्य करें। ये आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात है कि आपको एम्स जैसे प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान संस्थान में उपाधियां प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है। एम्स ने देश और विदेश में चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक नया मानक स्थापित किए हैं। एम्स चिकित्सा का ऐसा उत्कृष्ट संस्थान है जहां उच्चतम स्तर का आधुनिकतम इलाज हर वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। हम सब जानते हैं कि पहले भारत में एक ही एम्स संस्थान था और देश भर से लोग वहां इलाज के लिए जाते थे। वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अन्य स्थानों पर भी एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मैं इस दूरगामी सोच और जनकल्याण की पहल के लिए आदरणीय वाजपेयी जी की नमन करती हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार द्वारा नेफ्रोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे जनता को काफ़ी लाभ होगा और उन्हें इन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पटना और बाहर
नहीं जाना पड़ेगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि अनेक मानकों पर अच्छे प्रदर्शन के बल पर एम्स पटना ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित NIRF रैंकिंग 2023 में पहली बार 50 सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में से अपना स्थान बनाया है और 27वां स्थान हासिल किया है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं इस उपलब्धि के लिए एम्स पटना के डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में ये संस्थान और बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करेगा। एक खुशी की बात है कि ये संस्थान अत्यंत सक्षम डॉक्टर्स तैयार कर रहा है। हमारे देश की बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सुविधा जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत अधिक संख्या की जरूरत होती है। आज यहाँ से उपाधि प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखने वाले आप सब डॉक्टर्स और नर्सेस हमारे देश के एसेट्स हैं। आपके ऊपर देशवासियों को स्वस्थ करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे और इस संस्थान का तथा देश का नाम रोशन करेंगे। डॉक्टर्स पेशेंट और नर्स पेशेंट रेशियो राष्ट्रीय स्तर पर कम है और उसे बेहतर करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के सभी राज्यों में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल बनाया गया है, जिससे लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उनके अपने और आसपास के क्षेत्रों में मिल रहा है। केंद्रीय और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में MBBS की सीट्स में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। 50,000 से बढ़कर अब इनकी संख्या करीब 1 लाख हो गई है। अभी जो प्रवीण पवार जी मंत्री जी बताए थे शायद 700 कितना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं भी स्वस्थ और विकसित विकास के निर्माण में पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। देवियों और स्वजनों, आज हम होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी और संतोष की हो रही है कि हमारी चिकित्सा संस्थान आज चिकित्सा की सभी श्रेणियों जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा से लोगों का इलाज कर रहे हैं और इनके ओवरऑल फिटनेस को प्रमोट भी कर रहे हैं। एम्स पटना भी इन पद्धतियों के माध्यम से होलिस्टिक वेलनेस की दिशा में कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए यहाँ की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को और अधिक रिसर्च करनी चाहिए और अन्य संस्थानों को भी मेंटल हेल्थ एजुकेशन और इससे संबंधित ट्रीटमेंट सिस्टम सेटअप करने के लिए गाइड करना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एम्स पटना सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहा है। मैं आप सभी डॉक्टर्स और यहाँ के सारे स्टाफ की सराहना करती हूँ जो मरीजों की सेवा के लिए दिन रात बिना थके काम कर रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी एम्स पटना में बहुत सारे गरीब मरीजों का इलाज हो रहा है, जिससे सब लोगों तो क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर पहुंचाने के सरकार के प्रयास में बहुत मदद मिल रहा है। देवियों और स्वजनों, मैं इस अवसर पर लोगों की निरंतर सेवा करने के जज्बे के लिए देश के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की सराहना करती हूँ। मैं सभी देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ और आपका तथा आपके परिवारजनों का आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को
मैं फिर से बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सदा ही उत्साह से देश और देशवासियों की सेवा करते रहिए और सबका दिल जीतते रहिए और सेवा में लोगों का कहते हैं था सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं कि लोग उस टाइम आते हैं, मैं एक दो बार भी कहीं कहीं बोल चुकी हूँ, जो परेशान होते हैं अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं, क्योंकि आप जीवन रक्षक है, जीवन दाता है। इसीलिए यही भावना से बहुत हम राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोले, केवल क्योंकि आप एम्स के स्टूडेंट्स हैं, एम्स का खुद का और परिवार का नाम रोशन करने के साथ साथ एम्स का और ये देश का नाम रोशन करना चाहिए और सेवा भाव से लोगों का काम करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदया। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।